Today we will continue the lesson, The Man Who Killed My Dog. Third paragraph on page number 54. Sir, you didn't bother to look back, so I will tell you what that thumb was and who gave the help. It was our Wendy, a 6-month-old basset puppy, lovely white coat with brown and black markings, an aristocrat with 12 champions among her 4 bears. How she cloned and chased, how she loved people and children and the other dogs. Listen, sir, you didn't bother to look back, so I will tell you what that thumb was and who gave the help. सर, आपने पीछे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आवाज़ था वो क्या था. I will tell you what that thumb was and who gave the help. मतलब आपका वो झटका लगा था वो क्या था और वो चिल्लाने की और रोने की आवाज़ किसकी दी. It was our Wendy, a 6-month-old basset puppy. कौन था वो? वेंडी. बासेट एक ब्रीड होती है डॉग्स की, जो डॉग्स के पैर छोटे छोटे होती है, उनकी बॉडी लंबी होती है और उनकी ईयर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. लवली वाइट कोट विथ ब्राउन एंड ब्लैक मार्किंग्स. और इसके बाल वाइट कलर के थे जिसमें ब्राउन एंड ब्लैक कलर के मार्किंग्स भी होती है. किसका? वेंडी का. एन अरिस्टोक्रेट विथ 12 चैंपियंस एमंग हर 4 बियर्स. अरिस्टोक्रेट मतलब होता है कि एक अच्छी ब्रीड का एक डॉग था, वो बहुत सारी कंपटीशन भी जीते थे. हमारा डॉग वेंडी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे. हाउ शी क्लोन्ड एंड चेस्ड, हाउ शी लव्ड पीपल एंड चिल्ड्रन एंड द अदर डॉग्स. और ये वेंडी है ना, दूसरे के साथ खेलती थी, दूसरों के साथ मस्ती करती थी, दूसरों लोगों को पसंद करती थी, बच्चों को पसंद करती थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. I am sorry you didn't stick around to see the job you had done. Surely, a dog dying by the side of the road is no pretty sight. So perhaps you thought it better to forget all about the thumb and the help. But sir, in less than 2 seconds, you and that car of yours transformed a living thing into a lifeless lump. I am sorry you didn't stick around to see the job you had done. लेकिन मैं क्षमा मांगता हूँ कि आपने रुककर देखना भी ज़रूरी ना समझा कि आपने क्या किया है. Surely, a dog dying by the side of the road is no pretty sight. हाँ, ये सच है कि किसी कुत्ता को, डॉग को रोड के साइड में मृत्यु हुए देखना अच्छी चीज़ नहीं है. So, perhaps you thought it better to forget all about the thumb and the help. आपने जो झटका लगा था, आपने जो आवाज़ सुनी थी, आप उस चीज़ को भूल गई. बट सर, इन लेस दैन 2 seconds, you and that car of yours transformed a living thing into a lifeless lump. लेकिन सर, आपको ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल 2 सेकंड में आपने और आपके कार ने एक जीव जंतु को मार डाला. किसको? जो लेटर लिखते हैं उनके डॉग वेंडी को. इन लेस दैन 2 seconds, you transformed a thing that had been so beautiful and loving into something so dirty and ugly. और बिल्कुल 2 सेकंड में आपने इतनी सुंदर सी, प्यारी सी जो हमारे डॉग था, उसको एक गंदी, बुरी सी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया. I hope to God that when you hit my dog, you had for a moment the same feeling that we have known since, the same sick feeling that we have in our throat and down the stomach even now. क्या है? I hope to God that when you hit my dog, you had for a moment the same feeling that we have known since. मैं ये भगवान से आशा करता हूँ कि जब आपने मेरे डॉग को हिट किया
टक्कर मारी तब आपको भी वो फील हुआ होगा जो हम लोगों की भी हो रहा है। द सेम sick feeling that we have in our throat and down the stomach even now. वही बुरी फीलिंग, वो जो बुरी चीज़ हमें जो अभी तक हो रही है वो आपको भी 1 मिनट के लिए तो हुई होगी। क्या आपने कुछ गलत किया है? And I hope to God that you will always have this feeling whenever you go speeding down a winding country road, because next time some 8-year-old boy might be wobbling along on his first bicycle. And I hope to God that you will always have this feeling whenever you go speeding down a winding country road. मैं आशा करता हूँ कि ये फीलिंग आपको तब तब आएगी जब जब आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाओगे। Because next time some 8-year-old boy might be wobbling along on his first bicycle. क्या है? What he was telling? मैं चाहता हूँ कि आपको ये फीलिंग तब तब आए जब जब आप तेज़ गाड़ी चलाएं। और इस बार तो मेरा डॉग था, लेकिन अगली बार एक 8-year-old बॉय भी आपके सामने आ सकते हैं। 8 साल का बच्चा भी आपके सामने आ सकता है। वॉबलिंग मतलब एक साइड से दूसरे तरफ जाना। और ए स्वीट लिटिल वन वाइल प्लेइंग विथ हर फादर माइट सडनली रन आउट ऑफ द गेट एंड इनटू द रोड द वे माई पप्पी डिड। और एक लड़की भी हो सकती है जो छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ खेल रही है। जिस तरीके से मेरा पप्पी भागते हुए गेट के बाहर आया, वैसे वो छोटी बच्ची भी अपने पापा के साथ खेलते हुए भागते हुए गेट के बाहर आ सकती है और आप उसे भी हिट कर सकते हैं। और perhaps you will really be lucky next time also and only kill another dog and break the heart of another family. और आप लक्की भी हो सकता है कि अगली बार भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को ना हिट करें, आप एक डॉग को हिट करके हमारी जैसे कि दूसरे फैमिली को वापस हर्ट कर दें, मतलब उनका दिल तोड़ दे। If you are lucky, only kill another dog and break the heart of another family. और आप लक्की भी हो सकते हैं कि अगली बार भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को ना हिट करें, आप एक डॉग को हिट करके हमारी जैसे कि दूसरे फैमिली को वापस हर्ट कर दे, मतलब उनका दिल तोड़ दे। एंड दिस लेटर रिटन बाय रिचर्ड जोसेफ। रिचर्ड जोसेफ ने ये लेटर लिखा था उस पर्सन को जिसने उनके डॉग वेंडी को टक्कर मारकर मार डाला था। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लेसन? व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? हमें भी ड्राइविंग धीरे करना चाहिए, देखते हुए करना चाहिए। ड्राइव स्लोली। थैंक यू फॉर लिसनिंग।